Hello, hi, I'm Dinesh, Srejal's father. और what I intend to start is reading newspaper और खैर newspapers तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे यूट्यूब में but the thing is that what I intend to go ahead with is for the children's the news articles which are relevant on the daily basis. This is what I would like to present. So ये सेशन मोस्टली बच्चों के लिए होगा. The newspaper that we I'm going to take is The Hindu, मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर. रीज़न बीइंग उसमें डिटेल एनालिसिस होती है. न्यूज़ तो एनीवे रहते ही रहते हैं बट व्हेन न्यूज़ आर देयर इन कंसेक्यूटिव सेशंस, कुछ खास न्यूज़ होते हैं जो डेली 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 आते रहते हैं तो उनकी डिटेल एनालिसिस भी होती है एंड द एडिटोरियल्स आर रियली गुड इनफ. तो द न्यूज़पेपर हैव पिक्ड इज हिंदू. ऑन द डेली बेसिस आई विल बी गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर और उसके बाद उसमें से जो रेलेवेंट सेक्शन जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए है दैट आई विल बी पिकिंग अप एंड एक्सप्लेनिंग इट. और उसके अलावा और भी सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं दैट वुड बी देयर एंड आई वुड जस्ट रिकमेंड किड्स एंड द चिल्ड्रन टू गो थ्रू दिस न्यूज़पेपर. आप खुद से भी जा सकते हैं and then try to have the flavor of this. We get used to reading this one. So moving ahead with today's 2nd December Dinesia. So first, the cover page, and in the cover page, the articles that are there, four numbers, and this is particularly the Delhi edition of the Hindu newspaper. और इसमें से जो बच्चों के लिए what I have thought is the first article is relevant, and hence some of the key points from the article itself has been captured over here. So this is the way I will just go through each and every article with having the snippet of the first or the relevant pages of the newspaper, जहाँ पे वो particular section यहाँ पे highlight रहेगा, and then the elaborated over here to give a glimpse of it, and then what are the key information that is there within the newspaper. The other relevant articles which are there in the newspaper but may not be for the kids, it was going to be a bit more difficult to understand. उसको मैंने ऐसे capture किया हुआ है. However, if one wish, and in fact it's recommended to go through them, तो मैं थोड़ा सा उसको एक एक्सप्लेन कर दूंगा, ब्रीफ दे दूंगा, एंड देन यू कैन गो अहेड बाय गोइंग थ्रू दिस न्यूज़पेपर एंड देन गो अहेड इन डिटेल टू लुक फॉर द आर्टिकल इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन फ्रॉम द कवर पेज, 2nd December टुडे. And this article, Omicron scare grounds international flight plan. So as we have known, and this is one of the trending news that's happened because of the new variant of the COVID-19 coronavirus has come and has been named as Omicron. इसके कारण से now WHO has given a clear message that this is a variant that is of concern. So the country should be prepared for it because it is capable of doing more devastation what has been happened till now if we are not prepared. तो इसी को लेकर के है कि क्या क्या तैयारियां हुई है. वी हैव सीन ऑन द नेशनल लेवल Prime Minister held the meeting, and at the state level also various meetings of the various states have been held. उसी में से ये निकल करके आया है द यूनियन गवर्नमेंट ऑन Wednesday cited concerns over the Omicron variant of the coronavirus and indefinitely postponed the full resumption of schedule of international flights from December 15. तो 15 दिसंबर से हमारा प्लान था कि फ्लाइट्स को फुल्ली हम मूव कर सके as was in the case of before COVID, or currently it is flying for only 31 countries which इंडिया हैज़ गॉट अ एयर बबल अग्रीमेंट विथ. तो इसको हम पहले की तरह हम फुली रिज्यूम करने वाले थे फ्रॉम December 15, बट अनफॉर्चुनेटली ये नया वेरिएंट जो कि रियली में कंसर्न हो सकता है, इस कारण से प्रिकॉशनरी मेजर हैज बीन टेकन एंड इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड. तो ये एक बड़ा न्यूज़ है. सो इफ़ सम ट्रेवल्स एंड थिंग्स आर देयर विच हैड बीन प्लान्ड तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा. न्यू डेट फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विस विल बी नोटिफाइड लेटर, और ये होगा जब हमें पता चलेगा इसकी कितनी सीवियरिटी है और किस स्केल पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और डायग्नोज हो रही हैं. हेंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल and only with 31 countries with which India has got the air bubble agreement. So that is there with this cover page article.
Next article we have is बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट्स सुधा भारद्वाज बेल. तो ये हमारा आर्टिकल है विद इन दिस पेज ओवर हियर. If you're interested, you can go through. GST collection surges is November. तो GST कलेक्शन हमारा बढ़ा है. वेल GST इज द ग्रॉस गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स, और इसका कलेक्शन इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ. इट वॉज 1,31 करोड़ राउंड अबाउट इन नवंबर, एंड दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट सिंस इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017. सो अभी तक के मंथ वाइज बेसिस पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था. सेकेंड हाइएस्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू जुलाई 2017, एंड द second month in a row that collection have crossed 1.3 lakh crore. So that is one of the news that is covered in detail and has been explained beautifully with respect to the charts over here. So if find more interest, can go through it. Bengaluru shows next, says Kunal Kamra. So this is another article, and that is over here. And what's being talked about is a stand-up जो हमारा कॉमिक मिस्टर कुमार कामरा है, उन्होंने कहा है कि his show in Bengaluru were cancelled due to threats to close down the venue, and this comes days ahead after comic Munawar Farooqi was denied permission to perform in the city over the threats processed by the Hindutva group. तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लेकर के है. तो उनका ये कहना है कि द शो इज नेक्स्ट. सो दैट इज ऑल. इफ फाइंड मोर, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कैन गो थ्रू इट फर्दर इन डिटेल. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड दैट हैपन्स टू बी द सिटी सेक्शन. तो सिटी सेक्शन में द आर्टिकल विच आई हैव पिक्ड is over here, Central Vista project of national importance. वेल ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में है, एंड जिनको ये प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, वेल दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट इज बीन एग्जीक्यूटेड इन द कैपिटल दिल्ली. और इसमें हमारा जो राजपथ का एरिया है उसके पास मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू हैव अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. सो हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अभी का, दैट इज गोइंग ऑन एक्सपेंशन मोड, एंड फॉर दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट. हाउएवर दिस आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू ऑल दीज पास्ट, बट अभी के जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया गया है. सो व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल. ये प्रोजेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेटर फॉर द किड्स की ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ समय में व्हेन इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, द राजपथ वोंट बी द सेम एज इट इज राइट नाउ. तो वो हमारा अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा व्हेन यू ग्रो अप एंड देन कम आइदर यू इन दिल्ली और कम टू विजिट दिल्ली, यू आर नॉट गोइंग टू सी द सेम व्हाट इज देयर. अभी बहुत खुला खुला है. वेल moving further, the government said on Wednesday that the Central Vista project is of national importance and work on it is continuing even as the construction ban is reimposed by the Supreme Court in the capital. तो अभी पता है कि हमारी एनसीआर या फिर सेंट्रल दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रखी है, वेरी पुअर सीवियर हज़ार जोन में वो मोस्टली रह रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. उसमें से कपल ऑफ देम आर द स्टबल बर्निंग, फिर है वी डू हैव नो मूवमेंट, नो फ्लो ऑफ द winds or the air. So because of the stagnation or because of the stubble burning and the construction activities going on, there is a ban that has been there imposed in the capital. However, इस बैन होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन वर्क सारी बंद है, बट ये प्रोजेक्ट हमारा जो है ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज गोइंग ऑन. तो यहीं पे एक थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि बाकी सब के लिए एयर क्वालिटी खराब हो रही है, कंस्ट्रक्शन एयर क्वालिटी को लीड कर रहा है, तब ये प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. वेल द रैशनल बिहाइंड दिस इज दैट द अर्बन अफेयर मिनिस्टर इन इट्स एफिडेविट assured the Supreme Court that the project to build a new parliament building and Central Vista avenues do not cause any pollution. तो इन्होंने ये कंफर्म करा है इन एन एफिडेविट दैट इज assured to the Supreme Court. और बिकॉज ये बैन इज इम्पोज बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो उन्होंने ये बोला है कि इट डजंट कॉज एनी पोल्यूशन. वेल सवाल ये आ सकता है कि हाउ. द आंसर इज द मिनिस्ट्री सेड द प्रोजेक्ट कंप्लाइज विद द कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड ईच एंड एवरी कंडीशन which is out to ensure that it does not cause pollution.
अब यहाँ पे इनका ये है कि द वे द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट मे बी कमिंग बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अभी टेकिंग केयर ऑफ द पोल्यूटेंट्स क्या होता है? वेल, इसको हम समझ सकते हैं कि mostly in the developed nations what happens, the construction are not done in open but they are very much barricaded, green covering होती है, लगाई जाती है, so that कि dust या फिर जो उसे कोई भी नियर बाई मूवमेंट हो रही है या बिल्डिंग्स में है उनका असर किसी तरीके से न पड़े, कंस्ट्रक्शन का शोर ना हो, पोल्यूशन ना हो ऑफ एनी टाइप। तो दैट इज द प्रैक्टिस दैट इज बीइंग फॉलोड। हाउएवर इन इंडिया यहाँ कंस्ट्रक्शन में उतनी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती हैं, इस कारण से वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन डूइंग इन ओपन और पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं, फैलते हैं। वेल, सेंट्रल विस्टा में कहा गया है बाय द मिनिस्ट्री कि हम सारा ध्यान दे रहे हैं इस पे, हेंस वी हैव चेक्ड कि पॉल्यूशन इससे नहीं हो रहा है। वेल, टू व्हाट एक्सटेंट इट्स रेलेवेंट, इट्स अप टू सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। सो मूविंग फर्दर, अगला जो आर्टिकल है that is on the petrol gets cheaper by rupees 8 per liter in Delhi as government reduces VAT, that is another article। और यहाँ पे ये बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट brought down the value added tax, that is VAT on petrol to 19.4% from existing 30%। तो ऑलमोस्ट 10% का रिडक्शन हुआ है वैट में, जिसके कारण से 8 रुपये पर लीटर का फायदा होने की बात कही जा रही है। और ये जो डिसीजन है वो टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगला न्यूज है, नेवर थॉट आई वुड बी अ हेट क्राइम विक्टिम, दिस इज ओवर हियर दिस आर्टिकल। तो इसमें मिस्टर काजिम शेरवानी है, उनके बारे में बताया गया है, who was really very brutally thrashed and abused on a van in Noida. He has moved to Supreme Court. So उनके बारे में है, if you are interested then you may cover up this article. Next, going further, HC pulls up civic bodies on rising dengue cases. Well, ये डेंगू के बारे में है और हाई कोर्ट ने बोला है कारण बताओ, तो ये चीज़ इसमें कवर्ड है। The Delhi High Court on Wednesday pulled up the municipal corporation for their failure to control the spread of dengue, which has doubled this year in the Delhi region। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और यही इसमें कहा गया है। मोर डिटेल इज कैप्चर्ड ओवर देयर इन द आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट नोटिस टू CPW ऑन CPWD, जो हमारी एक बॉडी है दिल्ली में, फॉर द बैन वायोलेशन, दैट इज अनदर आर्टिकल। And then you do have the NGA owner, daughter molested, and she was also owner, daughter molested, she was also attacked. So that is also an article which over here will go on indefinite strikes if salaries are not paid. Well, this is told by the teachers। अब ये कहाँ के टीचर्स की बात हो रही है? तो ये जो बात हो रही है, this is for the North Delhi Municipal Corporation, where the teacher held the talks with the association after 7,000 teachers stopped taking online classes over the issue of non-payment of salaries since August। So पिछले 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये हमारे खुद दिल्ली की बात है और वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सरकारी टीचर्स की बात है। वेल, ये न्यूज़ ना फर्दर डाउन द न्यूज़पेपर में रिलेट करती है ऑन अ पर्टिकुलर अनदर सेक्शन रिगार्डिंग द टीचर्स ओनली, बट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, तो दैट्स व्हाई आई हैव बिट इलैबोरेटेड इट एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। अगला आर्टिकल है, ड्राफ्ट NCR रिलीजन प्लान टू बी पब्लिश्ड फॉर फीडबैक। तो ये एक आर्टिकल है एंड दिस इज कवर्ड ओवर हियर। इसमें कहा गया है कि द रीजनल प्लान NCR का, दिल्ली NCR का 2041, अभी चल रहा है 2021, 20 साल बाद का जो हमारा रीजनल प्लान होगा उसके बारे में एक ड्राफ्ट बनेगा, उसका फैसला होना है। दैट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द रीजन व्हाइल प्रमोटिंग वर्टिकल ग्रोथ एंड दिस ड्राफ्ट इज लाइकली टू बी पब्लिश फॉर फीडबैक दिस मंथ। ठीक है, तो हमारा 2041 का 20 साल बाद का NCR रीजन का एक ड्राफ्ट प्लान बनेगा, मास्टर प्लान बनेगा, जहां पे size of the region is going to get reduced a bit while it's been done in order to promote the vertical growth. Vertical growth means not spreading a lot but spreading
in a vertical direction on a growth trajectory, growth path. तो ये एक आर्टिकल है. If you feel interested, you may cover. So moving further, अगला सेक्शन, अगला पेज हमारा स्टेट्स का onto this Hindu newspaper. And here we see that Gift City emerging as the India's first greenfield city. और ये न्यूज़ यहाँ पर हमारा यहाँ पे इस आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिल्ली एडिशन में है. अब इसमें खास बात क्या है? वेल, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज दैट ये गिफ्ट सिटी इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी, गिफ्ट सिटी. So it's India's first and only international financial service center where banks भी होंगे, stock exchanges भी होंगे, financial services firms भी होंगी और वो उनके global operations के साथ. So this is what is there and it's of its first kind in India. Around 7 kilometers from Gandhinagar on the banks of Sabarmati River and spread across 886 acre. Once a barren land along the river is now emerging as the country's first greenfield and integrated city. और सबसे मज़ेदार बात, it's a dream project of नरेंद्र मोदी when he was Chief Minister of Gujarat. तो ये एक है, एक नया सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी देखने को मिलेगा as an emerging time in the emerging days. So that's why it's a bit more important and good enough. Moving further, nothing in my speech caused religious animosity, says Srijil. Now here what is being talked about is one of the student, Srijil is Imam of Jawaharlal Nehru University. He was arrested for allegedly making the inflammatory speech during the anti-CA and NRC protest. तो उसके बारे में ये यूज़ है और ये आर्टिकल है. और here what he intends to say is that हमने ऐसा कुछ नहीं करा. So that is there. Moving further, PIL on order to ban temples in the police station has been dismissed. And don't remember meeting Anil Deshmukh unofficially. This is what Mr. Vage has said. Moving further, allot common symbols to Azad Party, Delhi High Court. Center attempting to create a rift, says the SKM, that is the संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि सेंटर के अगेंस्ट बात कर रही है और बोल रही है कि they want to create a rift. कांग्रेस आप स्क्वबल ओवर द पंजाब एजुकेशन सिस्टम. अब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की हमने बात की, जहाँ पे देखा कि नॉर्दर्न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में खुद पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है लोगों को, टीचर्स को. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच में तनातनी हो रही है, ये कहते हुए कि हाँ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. बट बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग टू वू द वोटर्स, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में और एजुकेशन सिस्टम आम आदमी पार्टी ने एक वहाँ पे मुद्दा बनाया हुआ है. सो दैट इज देयर. नेक्स्ट, यूपी ऑफिशियल हेल्ड इन टीटी पेपर लीक केस. अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ये एक खुद जो हमारे उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल है, ही वॉज इन्वॉल्व इन लीकिंग वन ऑफ द पेपर्स फॉर द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज TET. सो दिस आर्टिकल इज कवर्ड ओवर हियर. और इसमें यही कहा गया है कि अभी पता चला है, 3 दिन जस्ट हुए हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए हुए, कि एक एजेंसी इन्वॉल्व थी फॉर प्रिंटिंग देम एंड हैव बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड द यूपी ऑफिशियल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है. सो यू मे गो थ्रू इट, बट दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इट इन द आर्टिकल इज. मूविंग फर्दर into the state section itself, on the next page we have one good article, and this is regarding the butterfly species record increase. अच्छी बात है. So this is covered over here. और यहाँ पे खास क्या है, a 4-day butterfly survey was conducted by Kerala Forest Department and the Travancore Nature History Society, Thiruvananthapuram. तो 4 दिन का हमारा एक सर्वे हुआ था और उसमें ये देखा गया कि ये एक्चुअली पीची वाजनी वाइल्ड लाइफ डिवीजन में हुआ था, हैड रिकॉर्डेड द रिमार्केबल इंक्रीज इन द स्पीसीज नंबर. सो बड़े हैं सदर्न बर्ड विंग, द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, ग्रास जेवल द स्मॉलेस्ट वन वर फाउंड ड्यूरिंग द सर्वे. फिर एक बुद्धा पीकॉक बटरफ्लाई
The state butterfly of Kerala was also recorded. The survey marks the beginning of a series of biodiversity assessments to prepare the new management plan for the region, and it has a specific section targeting invasive species that are a threat to the indigenous biodiversity. ये कहा गया. सो दैट इज़ व्हाट्स देयर इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. फिर उसके बाद हमारे और भी आर्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर पेज में. AIDM के MPs स्टॉल डिबेट ऑन द डैम सेफ्टी बिल इन राज्यसभा. और ये डैम जो बताया जा रहा है दैट इज़ फॉर द मुल्ला पेरियार डैम, जो कि काफ़ी दिनों से इधर न्यूज़ में चर्चा में है. और मुल्ला पेरियार को हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर कराया है. उसकी एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट है दो स्टेट के बीच में, केरला एंड तमिलनाडु. और थोड़ा इंटरेस्टिंग ये इसलिए बन जाता है कि ये डैम है तो केरला में बट ऑपरेट तमिलनाडु करता है. फ़ायदे तमिलनाडु को मिलते हैं और ये डैम चूँकि केरला में है, मेंटेनेंस एंड ऑल, या फिर अगर डैम को कुछ होता है किसी कारण से, या फिर अगर पानी छोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा जो बर्डन आती है वो होती है केरला के ऊपर. तो इसी कारण से ये डैम काफ़ी चर्चे में है और अब भी इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली गया है. बट हाउएवर दिस इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. यहाँ पे कहा गया है कि AIDM के MP वो इज इन तमिलनाडु स्टॉल मीन्स उन्होंने रोक दिया है डिबेट ऑन द डैम सेफ्टी बिल जो कि राज्यसभा में होना था. आगे यू मे कवर इट ओवर देयर. इससे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है. वेल हाउएवर दिस डैम इज़ बीइंग फॉलोड दीज डेज. तो आने वाले न्यूज़पेपर्स में भी, आने वाले दिनों में भी न्यूज़ सेक्शन में ये बना रहेगा. फर्दर इज 5 CPI Malay workers arrested by CBI in the Perry murder case. AIDMK decides to retain the dual leadership concept, which is here. HC upholds the conviction of Kerala priest asked to return PhD degree for praising PM, says an Aligarh Muslim student. वेल इसमें एक्चुअली क्या है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट हैं, उन्होंने एलिज किया है कि यूनिवर्सिटी ने उनको बोला है कि यू रिटर्न द PhD डिग्री फॉर द करेक्शन बिकॉज ही प्रेज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. वेल द स्टूडेंट इज़ एन हिंदू स्टूडेंट और ये न्यूज़ में आया हुआ. हाउएवर द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने है दे हैव said that the allegations are baseless and unsubstantiated. Well, that is all, and that you can just get it the entire news over here in this article, this particular section. Landslip disrupts the traffic of the Tirumala Ghat road, and in Karnataka egg distribution begins in school midday meal. तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे कवर है. Moving further into the same state, on the next page what is there is Congress for presenting united face in Punjab. This is the news where we have. And then open to alliance with any party, said Shiromani Akali Dal Sangyukt. Rajasthan Congress appoints new office bearers. And in a jolt to Akali Dal, DAGMC chief joins BJP. So these are the other news articles into the state section. I won't be covering it in detail. आगे बढ़ते हैं. Going to the next, the editorial section of the Hindu News. उसमें कुछ आर्टिकल हैं जिसके बारे में डिटेल एलैबोरेशन प्रोवाइड किया गया है. एंड वन ऑफ द आर्टिकल सच आर्टिकल इज रोड टू रिकवरी. और इसमें जो बताया गया है दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द GDP एंड द GVA एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस हैज अफर्म्ड दैट द इकोनॉमी इज नाउ ऑन अ पाथ ऑफ रिकवरी. सो ये एक अच्छी खबर है आफ्टर लास्ट फिजिकल रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसी के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल में कवर्ड है. हाउएवर द पॉलिसी मेकर्स मस्ट बूस्ट डिमांड सपोर्टिव मेजर्स टू इंश्योर रिकवरी सस्टेन्स. एंड ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कही गई है इन डिटेल. एंड सेकेंड क्वार्टर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपैंडेड पिछले साल की अपेक्षा फ्रॉम 7.4 to 8.4. सो दिस इज व्हाट बीन कवर्ड रोड टू रिकवरी. Sorry.
अनदर वन यहाँ पे जो बहुत बड़ा सेक्शन है वो है TMC इज प्लेइंग T20, आप इज प्लेइंग अ टेस्ट मैच, and this has been beautifully explained in this article because being a bit more political in nature and because of the election and the result that has happened at the forthcoming elections. अब मैं बस इसका एक ब्रीफ बताना चाहूँगा, आई हैव नॉट कवर्ड इन डिटेल, बट ब्रीफ में यही है कि वेस्ट बंगाल से अब एक्सपेंशन स्प्री में है ममता बनर्जी, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हु रिसेंटली वॉन दिस टर्म, गिविंग अ टफ फाइट टू BJP, द ऑपोजिशन. तो TMC उनकी पार्टी है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ ब्रेथ टेकिंग स्पीड, while the other one that is emerging is आम आदमी पार्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल. तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में बताया गया कि TMC तो T20 की तरह से बढ़ रही है, मीन्स रैपिड रैपिड रैपिड, while आम आदमी पार्टी is playing a bit more cautiously and then moving at a slower pace. So last week the TMC swooped down on most of the Congress legislative party in Meghalaya, including former Congress Chief Minister Mukul Sangama. So that is there. The effect was as intended, as it created more flood in the political circles over the whether an ascendant TMC might soon displace a fast declining Congress. तो TMC का growth curve expected है, and this is why it's being talked about. While आम आदमी की पार्टी के बारे में है कि more likely to appropriate the electoral space of the Indian National Congress. तो कांग्रेस की वोट शेयरिंग धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू गो इनटू द किटीज ऑफ दीज टू पार्टीज. However, moving further, point of disorder is captured over here in this, and the in-border standoff, manufactured रिफ्यूजी क्राइसिस, जो कि बनाया हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस है, उसके बारे में एक यहाँ पे बताया हुआ है. either you say manufactured or you say doctored, essentially remains the same. उसके बाद going further on to the next page of the Hindu, यहाँ पे again within the editorial section we do have a capital functioning from different regions. well, यहाँ पे जो बात है वो कही गई है over Andhra Pradesh, the state which had originally got bifurcated into Andhra Pradesh and Telangana, और अभी हैदराबाद इज़ द कैपिटल, और नया जो एक कैपिटल बनने वाला है अमरावती, उसके बारे में है. So distributed development and decentralized governance will pave the way for the inconclusive Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh anyway has said that it was bifurcated into Andhra Pradesh and Telangana under Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. So this is what's been covered, and Hyderabad going to Telangana. तो हमारे लिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या होगा उसके बारे में है, कैपिटल फंक्शनिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. Errors of judgment is another good article covered, and there seems to be a deep error of a judgment, and this involves the recent Allahabad High Court order on the POXO case, which must be set right. तो उसके बारे में डिटेल इस edit section में provided है. A blow to Kerala exceptionalism is the another one, and inoculation rate improves, that is covered with the nice graphical representation over here. फिर 50 साल पहले ऑन दिसंबर 2 1971 में क्या खास था, और 100 साल पहले दिसंबर 2 1921 में खास क्या था, इज कवर्ड इनटू दिस सेक्शन. और ये हिंदू न्यूज़पेपर में जनरली हमारे एडिट सेक्शन में हर एक दिन का 50 और 100 साल पहले का कुछ खास इंसिडेंट को यहाँ पे कवर किया जाता है इन इट्स ओन वे. तो वन इज द एंटी सोशल एक्टिविटीज इन राजस्थान, दैट इज दे, और दूसरा है 100 years द मोस्ट ड्रंकन प्लेस. और ये कौन सा है, वेल दैट इज the thing, that the town that is being talked about is Surat. Can have a detail into this if kids are interested. धीरे 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 कर करके हम अपने सेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, बट माई इंटेंट इज टू नॉट मेक इट टू मच लेंदी, जस्ट बी मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स द इंटरेस्ट एरियाज, हाउएवर जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर विद इन द न्यूज़पेपर्स.
अगला है हमारा न्यूज़ आर्टिकल्स जो हिंदू न्यूज़पेपर में आता है आफ्टर एडिट. And in that, one of the important article that I find is regarding the elephants. Almost 1,000 elephants killed in a decade, and this is covered over here. Were killed, and there are various reasons for that that has been illustrated. The electrocution was one of the most prominent one. Train hits led to another 186. Poaching and poisoning that led to further killing of the animal, the killing of elephant in the past decade. And this actually, these figures has come from one of the RTIs that was filed. So the ministry said in the document that India has a total of 29,000, almost 30,000 wild elephants as per the estimate done in 2017. और इस RTI में इंफॉर्मेशन दिया गया था. एंड मोर ओवर इनका स्प्रेड कहाँ है, तो सदर्न रीजन कंप्राइजेज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 50%. तो सदर्न में ऑलमोस्ट 50% हमारे एलिफेंट्स हैं. बट दिस इज the 2017 survey that was done. उसके बाद द आर्टिकल इज ओमिक्रॉन के ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट, उसको इलेबोरेट किया गया है इस न्यूज़ सेक्शन में. दैट वाज देयर इन द कवर पेज. एंड देन देयर इज नो यूपीए नाउ सेज ममता. वेल, यहाँ पे यूपीए से ध्यान में आता है दिस इज द यूपीए दैट वी यूज्ड टू सी in the last two elections where they were fighting in opposition with BJP into the center for the Lok Sabha elections. So now Mamata Banerjee, उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि Mamata, this Trinamool Congress is into a T20 mode in a growing spree. तो वही यहाँ पे कवर किया गया है. एंड इट शोज हाउ मच एग्रेसिव एंड व्हाट आर द थॉट प्रोसेसेस दैट गोज बिहाइंड. तो बंगाल सीएम मीट्स एनसीपी, दैट इज National Congress Party of in the Mumbai to discuss the formation of the strong national front against BJP. So and while doing so, ये statement निकल करके आया था कि the United Progressive Alliance UPA no longer existed, taking a. तो यही ये बताया गया है कि यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट एक नई ऑपोजिशन, एक ग्रुप्ड ऑपोजिशन बनाने की ज़रूरत है. एंड फॉर दैट ममता बनर्जी मेट द एनसीपी लीडर मिस्टर शरद पवार. तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर है. उसके बाद हम लोग आते हैं जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड अ सर्ज इस नवंबर, जो कि हमने कवर पेज में देखा था. CBSE एग्जाम क्वेश्चन ऑन 2002 रायट कॉज स्टर, ये एक आर्टिकल है विच आई हैव कैप्चर्ड. ये इसलिए थोड़ा बिकॉज दिस इज फॉर द एग्जाम्स एंड दैट आल्सो फॉर द CBSE. यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो 2002 के दंगे हुए थे उसके बारे में. क्या ये पूछना सही है? दंगों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड दैट आल्सो ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. Well, what has been actually happened, let's see. This article is covered over here. A question in the class 12 board examination of the CBSE on sociology on Wednesday has created a stir. The unprecedented scale and the spread of anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 took place under which government? So this is the actual question. ठीक है. और the choices offered were Congress, BJP, Democratic या Republican. So a question has been asked in this class 12 और यही पे बताया गया है CBSE acknowledge that error made and will take strict action against the responsible person. So that is what CBSE told on the Twitter handle. वो इतना important क्यों रखता है? Well, this para is going to tell. Another teacher has agreed that the question was within the syllabus but noted that the board's guideline for examination were more restrictive. अब ये guidelines क्या है? This is what the guideline as seen by the Hindu is. The Hindu newspaper. Ensure that the question should be class neutral, religion neutral, not touching the controversial, social, political, critical issues under the prevailing conditions in the country. तो ये है.
तो इस गाइडलाइंस के तहत हम इस तरीके की क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। एंड एनीवे सीबीएसई हैज़ एक्नॉलेज दिस कि यहाँ पे गलती हुई है। So this was the article. Well, the other articles are Bombay High Court grants Sudha Bharadwaj bail and got convictions in all Godhra cases, SIT said, and the winter in northern India to be warmer than normal, the Indian Meteorological Department has said. तो अब इस बार की जो सर्दियाँ होंगी वो थोड़ी सी गर्म होंगी. This is what's been talked about in the article over here at length. अगला न्यूज सेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो टाइटर कर्व्स प्रूव कॉस्टली फॉर द फ्लायर्स. अब ये अगेन अगर कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है एंड देन एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स व्हाट्स हैपनिंग करेंटली बिकॉज ऑफ द WHO warning and the guidelines being followed by the parties at the various states, उसके बारे में थोड़ा सा फील यहाँ पे दिया गया है. What has happened? मीटिंग्स हुई हैं बड़े स्तर पे और फैसला जो निकल करके आया है उसका एक रूप यहाँ पर है. फैसले बहुत सारे आए हैं बट दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स दैट हैज कम थ्रू. As stricter testing norms at the airport for the international arrival kicked in on Wednesday, passengers from at-risk countries, जो कि इस दिन के न्यूज़पेपर में डिटेल में बताया गया था, had to brace for massive queues, long waiting time for the test result and missing connecting flights. So this is one of the repercussion. But अगली चीज़ उससे भी ज़्यादा important है. The only way out to pay for the expensive rapid PCR test. Now this is another term that has come through is a rapid PCR test जहाँ पे अगर आपको जल्दी से हेजल फ्री क्यू छोड़ के निकलना है भागनी है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. ऑलमोस्ट 9 times that of a regular test. आप समझ सकते हैं. Is it a money minting machine that has come through? Well, following the guidelines, following the stricter norms, that is fine. But यहाँ पे आप किसी को penalize कर रहे हो because he may be having some connection flights. आप उसको रोक के रख रहे हो on the ground of saying that, then what the government is doing. So that is what, well, costs है. I do agree, costs are there, but there are nations that has borne this cost. Going ahead, not to create any debate over here. To cut waiting time at Delhi airport, many opt for rapid PCR test, which cost 9 times. And well, is it a money-making racket? If the report can be delivered in 1 hour, then why 6 hours for the others? Well, resources लगते हैं. आपको जल्दी मिल रहा है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा. Means there are the resources, the costs associated, but to such an extent is what is questionable. According to the latest guideline of the Ministry of Health and Family Welfare, all passengers arriving from at-risk country have to undergo an RT-PCR test. That's good. On arrival, and have to wait for the report before exiting the airport and catching a connect flight. तो उनको रिपोर्ट के लिए भी वेट करना पड़ेगा. It's not that they just conduct the RT-PCR and then they can just go down. No, they need to. वेल ठीक है. अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अदर कंट्रीज़ में जैसे गल्फ कंट्रीज़ में तो इवन और स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है. वहाँ तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है मे बी फॉर द 7 days or the 14 days when you land at the airport. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स बैक दैट यूज्ड टू हैपन. तो यहाँ तो फिर भी आपको पैसे लेकर के इफ़ यू पॉजिटिव दैन आपको छोड़ा जा रहा है. वहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो आपको छोड़ा जा रहा है. वहाँ तो इवन नेगेटिव थे तो भी आपको यू आर देयर सपोज टू बी इन क्वारंटाइन फॉर द 14 days. सो दैट इज इवन मोर हार्शर. सो दीज आर द 2 points that I wanted to just come through. Most airport offer passengers RT-PCR test and rapid PCR test, while the former costs rupees 500 a test for the normal RT-PCR test. The latter is 3000 in Bengaluru airport. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की बात है, ये सब जगह यही चल रहा है. 4000 है दिल्ली एयरपोर्ट एंड 4500 है मुंबई एयरपोर्ट. सो गॉड ब्लेस द फॉरेनर्स हु आर कमिंग बैक नाउ ड्यूरिंग द वेकेशन. अगला है इंडिया जॉइन्स द G20 ट्रॉइका विथ इंडोनेशिया एंड इटली. तो अब ये ट्रॉइका क्या है? वेल, ट्रॉइका refers to the top grouping within the G20 that consists of the current, previous and incoming presidencies.
और ये कौन से 3 कंट्रीज हैं? वेल, द करेंट इज इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया आर द 3 कंट्रीज, इनका ट्रोइका है, उसी के बारे में बताया गया है कि इंडिया जॉइंस दिस क्लब नाउ विथ इंडोनेशिया एंड इटली. So, because India is started the procedure for taking over the G20 presidency next year. India will assume the G20 presidency on December 1, 2022, just एक साल बाद. किससे? Currently it's there with Indonesia, तो इंडोनेशिया से लेगा, and will convene the G20 leaders summit for the first time in India in 2023. So that's why this news is a bit more important. आने वाले समय में ये हमें देखने को मिलेगा. Curriculum must include the wisdom of Vedas, said the panel. Well, that is another article. इसमें बताया गया है, बोला गया है कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, this article over here is anyway covered in detail at this level. Not going in detail, but बताया गया है कि स्कूल टेक्स्ट बुक में should incorporate ancient wisdom, knowledge and teachings about the life and society from the Veda and other great Indian texts. And this is being told by a parliamentary panel on education. So हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले, these teachings should be a part of our curriculum. So that's why it's a bit important. More data on JAP for children sought. This is about the COVID-19. Ensure codes of ethics is followed on social media, and Supreme Court pushes for Council on Judicial Infrastructure. प्लीजिंग ट्रुथफुल वर्ड, अगेन इन पाथ में हिंदू में ये जनरली हमारा जो सुडोकू है और क्रॉसवर्ड है उसके साथ ये वाला सेक्शन रहता है. इट्स गुड टू रीड. फर्दर ऑन टू द न्यूज सेक्शन इटसेल्फ. व्हाई शुड वी अपोलोजाइज आज द 12 MPs. वेल, ये जो 12 MPs हैं ये उनकी बात हो रही है जिनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, एंड दैट वाज द सस्पेंशन इज वैलिड सिंस अगस्त. तो अभी कल न्यूज़ में आया था कि ओके, मिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड कि अगर उनको वापस आना है राज्यसभा में, वेल देन दे शुड अपोलोजाइज. और इस कारण से ये अब वापस आया है आज की न्यूज़ में कि वाई शुड वी अपोलोजाइज आज द 12 MPs. डिमांड फॉर MSP ग्रांटी एक्सक्रेशिया हैज पिच्ड अप. Bill to regulate IVF clinic passed in Lok Sabha. UP reports more UAPA arrest and we were never fence sitters, said the TRS party. So this is here. Moving further on to the world section. एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द अफगानिस्तान, क्योंकि अभी रिसेंटली तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर करा है, एंड अफगानिस्तान इज फेसिंग अ फिजिकल शॉक इज सेड बाय यूनाइटेड नेशंस. अफगानिस्तान GDP could contract to almost 20% within a year. Means 20% within a year. आप समझो 5 साल में 1 साल पीछे जा रहे हो. So your nation is going back. The UN predicted in a new report on Wednesday saying that the withdrawal of international aid after the Taliban return to power is an unprecedented physical shock. एक न्यूज़ आर्टिकल और कवर किया गया है इन न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग तालिबान इज सीकिंग फंड फ्रॉम द UN, जो कि अभी रोक दिया गया है. सो इन वन साइड तालिबान इज सीकिंग द फंड, ऑन द अदर साइड UN इज सेइंग दैट कि ये फंड जो है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑलमोस्ट 20% और इससे ये फिजिकल डिफिसिट आएगा. For decades now, Afghanistan economy has been undermined by wars and drought, but it was propped up by billions in बहुत सारे इंटरनेशनल लीड उसको मिले थे, एंड दैट्स वाई इट वॉज ऑन अ पाथ ऑफ रिकवरी. बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ वो चीज़ें रोक दी जाएंगी to some extent. Much of these which were frozen when US-led international force withdrew the Taliban returned in power in August. तो उसके बारे में ये प्लान है. अगला आर्टिकल है vulnerables will put off the troubles from mature and further guidelines that जो कि vulnerable है उनको प्लीज़ अभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इट्स रियली ऑफ कंसर्न. अभी स्टडीज़ उस पर जारी हैं. RT-PCR टेस्ट, रैट टेस्ट में हम क्या उसको क्या वो स्केप कर सकता है कि नहीं, वैक्सीनेशन का कितना फ़ायदा मिलेगा, ऑल दीज आर स्टिल गोइंग ऑन. EU plans
300 billion infra fund to counter China BRI. और इसमें जो बात बताया गया है that is the European Commission announced Wednesday that a plan to mobilize almost $340 billion in public and private infrastructure investment around the world. कारण क्या है? A move seen as a response to China's Belt and Road strategy. So, abhi European Union has got a bit more aggressive concerning the China's Belt and Road strategy, countering that क्योंकि चाइना भी अभी एक्सपैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स द स्ट्रैटेजी ऑफ क्रिएटिंग अ रोड नेटवर्क थ्रू आउट. तो उसकी कवरेज है यहाँ पे. Global Gateway will aim at mobilizing investments of up to 300 billion euros between 2021 and 2027, जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है. और यही चीज़ है हमारा यहाँ पे ब्रिंगिंग टुगेदर द रिसोर्स ऑफ द यू मेंबर स्टेट सेट. उसके बाद अगला है हमारा CNN सस्पेंस द क्रिस कुमो फॉर हेल्पिंग ब्रदर एंड्रयू. एन आर्टिकल विद इन दिस वन. तालिबान अर्जेस यूएस टू रिलीज द फ्रोजन फंड्स. जो मैं आपको कह रहा था, एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पे वही निकल के आया है कि तालिबान बोल रहा है कि मुझे फंड दो जो कि आपने फ्रीज किया हुआ है, जबकि यूएन बोल रहा है आपका 20% फिजिकल डेफिसिट होगा बिकॉज वी हैव टेकन ओवर एंड द फंड्स हैव बीन कंस्ट्रेन्ड. China is trying to drive Australia to its knees. This is what US is telling. And then US Supreme Court may uphold abortion law, and the Russia orders some US staff to fly home. So these are some of the other news within the world section of the newspaper. Moving towards the business, एक न्यूज़ था यहाँ पे, नॉट मच रेलिवेंट टू द चिल्ड्रंस किड्स बट आई जस्ट थॉट ऑफ कवरिंग इट. रेलवे मिनिस्टर स्क्रैप्स टेंडर फ्रॉम प्राइवेट ट्रेन्स. तो यहाँ पे हो क्या रहा है बस उसके बारे में एक जानकारी मिल जाए. द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज स्क्रैप द टेंडर इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम private operators to run train on select routes following the muted response parliament was informed. तो ये अभी स्क्रैप कर दिया गया है. मीन्स नो करंट बिडिंग इज गोइंग टू गो फॉर फ्रॉम द प्राइवेट ऑपरेटर्स टू रन ट्रेन. अभी तक ट्रेन सरकार चला रही थी बट कुछ रूट सेलेक्ट किए गए थे जिसमें बताया गया था कि अगर आप अपनी ट्रेन चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स प्राइवेट पार्टीज़ के थ्रू नहीं मिला एंड दैट्स वाई दिस इज नाउ स्क्रैप्ड. The bid was invited to induct 151 trains, 151 ट्रेनें चलती over the 12 cluster via the public-private partnership. तो ये एक न्यूज़ है which is going to be if muted tomorrow, okay, understood, but today आने वाले दिनों में it may again resurface. Next is manufacturing PMI signals November output growth at 9-month high. Exports dip widening, trade deficit to a record of $22 billion. India-China trade deficit 30 billion in April. तो डिक्लाइन हुआ है काफ़ी ज़्यादा हमारा ट्रेड. मारुति हुंडई होलसेल डिक्लाइंस एज द चिप शॉर्टेज बाइट्स. फिर यहाँ पे हमारा जो चिप शॉर्टेज हुआ है उसके कारण से जो कार की बिक्री है वो ये कम हुई है. साइबर अटैक से 26,000 इंडियन साइट्स इन 10 months. ये एक न्यूज़ है. फिर यहाँ पे द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इन जिसको कहते हैं, उन्होंने बोला है कि 26,000 इंडियन वेबसाइट्स पे पिछले साल भर में भी नहीं 10 महीने में ही अटैक हो रखे हैं. And this is a real big number in fact. फिक है. OECD cuts world growth outlook as Omicron fears and the TFCC to pick up 46% in the run for $4.414 billion. Moving further in the sports section, एक पहले तो अदर न्यूज़ आते हैं बट एक जो ठीक मुझे लगा इसकी कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन आयोजन होने वाला है. उसके पहले जो है कतर में स्टेडियम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाए जा रहे थे इन ऑर्डर टू होस्ट दैट इवेंट. एंड वन मोर स्टेडियम हैज़ नॉट गॉन लाइव एंड दैट इज़ अल बायत स्टेडियम. उसके बारे में है. एंड सी द लुक ऑफ द स्टेडियम. इट्स लाइक model on a traditional nomadic tent in the Gulf region. It's too big and this is how the overall
aerial view of the stadium is. It will host the opening game of the Qatar World Cup next year. Qatar on Tuesday threw open the doors of Al Bayt Stadium on the occasion of Arab Cup opener between the host nation and Bahrain. तो अब ये स्टेडियम चालू है. एक स्टेडियम रह रहा है that is going to be getting live soon in the next year. Sindhu Srikanth start well, so this is the another news that is captured over here. Mahambre happy with the Indian bowlers' effort. दो हम वो टेस्ट मैच जीत नहीं पाए. It ended in a draw. We were favorable, we were favorites of winning that, but it was a tough resistance and fight that was shown by the tail enders of the New Zealand team, particularly the last पार्टनरशिप, जिसके बारे में कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल में काफ़ी अच्छा बताया गया था. Morikawa favorite in a strong field, and Nepolet Charlson off the hook. So various other articles are there in this newspaper. Moving further, हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन किड्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है आज. द आर्टिकल्स आर एग्जामिनिंग द फेडरल नेचर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, a judicial pushback to the draconian legal regime, one public notice, and a new wave of anti-CA protest in Assam that is resurfacing after government announced to repeal the 3 farm laws. तो ये आसाम में अब ट्रिगर हो रहा है और इसका असर कितना होता है, we need to wait and watch. और एक क्विज ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ द abolition of slavery observed on December 2 by UN member states, उसके बारे में यहाँ पर है. So this ends with today's edition of the newspaper, The Hindu. Or I will join you tomorrow, hopefully. In the weekdays, I will be hosting this one, and in the weekends, I'll try to bring my daughter Shrejal along with me in order to co-host this newspaper that will be targeted more towards the children. Though yeah, newspaper in fact is good. One could cultivate a habit of going through this one. बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल होता है, उतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वन शुड गो अहेड एंड स्टार्ट. सो थैंक्स, गुड डे, टेक केयर, बाय.